आगे मैम आप लोग फ्यूचर में नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसको एज द प्राइम मिनिस्टर देखना चाहोगे? This question is really very interesting, and I have also discussed this question so many times. So, definitely, I would love to see Rahul Gandhi, because we all know that he have exposed so many things, and earlier he may have done something wrong also, but right now he's working very good. And also we want someone who is really very much educated, so we want someone who will guide us with education also, who will know that how to handle the, like, country properly. So always Rahul Gandhi. I'm fan of Rahul Gandhi. So आप किसको चाहोगे? माई आंसर इज़ ऑल्सो द सेम बिकॉज मैं भी यही सोचती हूँ कि राहुल गांधी इज़ डूइंग मच बेटर नाउ एंड आई थिंक ही इज़ ऑल्सो एजुकेटेड मैन तो ही विल डू बेटर सो आई विल चूज राहुल गांधी. आप? I will go with Khan sir because for our country to grow, a person who is educated and who can invest more in education sector, that person is required right now, because once all are educated, then our country will develop or go towards developing. So I'll choose Khan sir because he will do more improvement in the sector of education. तो जो चीज़ सरकार को करनी चाहिए लगता है कि वो खान सर कर रहे हैं। हाँ, he is doing many things. Like recently he has opened one thing, I don't remember the name, but that is really helpful, and he is opening that for free also, so that people can gain free experience or they can take free facilities. राहुल गांधी को तो लेकिन लोग पप्पू भी बोलते हैं। पप्पू भी बोलते हैं, बट देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मोदी जी को भी बोली जाती है. बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग मोदी जी, ही इज़ ऑल्सो गुड इन हिज ओन वे. बट राहुल गांधी को पप्पू इसलिए बोलते हैं, मे बी ही इज़ एक्सपोजिंग थिंग्स, दैट्स वाई उसको पप्पू बोला जा रहा है. और उन्होंने अपने फादर से ये सारी चीज़ें ली है, इस वजह से उनको पप्पू बोला जा रहा है. बट वी ऑल नो दैट वट एवर वी आर राइट नाउ, वी आर ऑलवेज बिकॉज ऑफ आर फादर ओनली. ही इज़ द वन इन एवरी फैमिली हु गाइड्स हिज चाइल्ड एंड पेरेंट्स एंड एवरीबडी इन फैमिली. सो आई डोंट थिंक किसी को पप्पू बोलना चाहिए इन सब चीज़ों की वजह से. आप कुछ कह रहे थे? आई थिंक वी हैव टू गिव चांस एवरीवन. लाइक मोदी जी ने 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में अब शासन कर लिया है, तो देयर इज़ अ नीड टू चेंज. सो माई वोट इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर. लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो पागल हो रखे हैं योगी जी को लेकर, तो आप लोग उनको देखना चाहते हो कि नहीं? नहीं, I do not wanted to see Yogi ji because I have listened so much about Yogi ji. I don't wanted to say in camera, but no, not at all Yogi ji. नॉट योगी जी बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि योगी जी इतना अच्छा कर पाएंगे. इवन मोदी जी इज़ बेटर देन योगी जी, बट आई थिंक वी हैव टू गिव चांस टू अनदर. सो आई थिंक राहुल गांधी इज़ बेस्ट. योगी जी के लिए? He is doing great in Haryana, or ही इज़ इन यूपी. sorry, he is doing great in UP. And he is the person who is required in UP only, but I don't see him as a prime minister. For UP he is a great, and he is doing great. यूपी के मुख्यमंत्री के लिए वो ठीक। Yeah, but for the post of prime minister I don't see him as. बिकॉज यूपी में जो है बहुत ज़्यादा करप्शन था एंड देर आर मैनी थिंग्स, सो देर इज़ नीड टू डू समथिंग. तो दैट इज़ वाई योगी जी इज़ बेटर इन द मतलब फॉर द यूपी बट नॉट फॉर द होल कंट्री. लगता है यूपी में काम हुए हैं आपके अकॉर्डिंग? यस, काम तो हुए हैं. इवन बहुत सारा गुंडागर्दी हुआ है, वो कम हुआ है. इवन मतलब ही इज़ डूइंग बेटर इन द यूपी. बट इफ़ वी हैव टू चूज फॉर द होल कंट्री आई डोंट थिंक सो योगी जी इज़ बेटर. I will go for Rahul Gandhi. We can Yes. only go for the like people who are really very educated, like Shashi Tharoor, Khan sir, and Rahul Gandhi. So we'll always choose them only. Yeah. Vikas Divya Kirti is also a very good teacher. Even if we give him if we give chance to him as a prime minister, so I think he will do far better than Modi ji and Rahul Gandhi also. क्या आप लोग फ्यूचर में मोदी जी के अलावा योगी आदित्यनाथ को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना पसंद करोगे कि नहीं? Sure. I mean, I am not sure if I am like okay with the prime minister. CM, as a CM, I think he's fine, but prime minister, I'm not sure. फिर आप किसको चाहते हो कि हाँ इसको बनना चाहिए? अभी तक तो कोई भी नहीं है ऐसा. कोई एक नाम तो होगा आपके माइंड में? No. बट ऐसा क्यों है कि योगी जी सीएम के लिए ठीक हैं बट प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं? I mean, क्योंकि इतने टाइम से we have seen मोदी on like that spot, and तो दिमाग में इमेज बन गई है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, कैसा होना चाहिए. तो थोड़ा लाइक किसी को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है उस स्पॉट पे, सेम स्पॉट पे. तो हाँ, मे बी लाइक दैट. यूपी को सही से संभाला हुआ है कि नहीं? सही से संभाला हुआ है. आई थिंक अभी तक तो मतलब जितना लाइक मैं तो दिल्ली की हूँ, तो आई डोंट नो मच अबाउट कि यूपी में क्या हो रहा है. बट जितना लाइक थोड़ी बहुत न्यूज़ आती है तो लगता है कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं. न्यूज़ हेडलाइन से ही पता चलता है कि वो क्या चल रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं. तो क्या क्वालिटीज़ आपको पसंद है सीएम योगी जी? लाइक
उनके एक्शंस बहुत जल्दी लेते हैं वो चीज़ों पे एंड हाँ सेम, क्योंकि बिकॉज मोस्टली गवर्नमेंट्स आप देखोगे कि दे मतलब इशू को लाइक बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, फिर बोलेंगे हम करेंगे करेंगे करेंगे, पर वो करते नहीं है फिर। एक्शन जल्दी लेते हाँ वही, यही बात अच्छी है। तो और मतलब यूपी के अंदर आपने कुछ बदलाव देखे हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही करी है? आई मीन नॉट रियली, क्योंकि हम तो दिल्ली में ही हैं तो इतना यूपी का हमें पता नहीं आइडिया। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि वुमेन सिक्योरिटी को लेकर ठीक कर दिया है यूपी, ऐसा लगता है? आइडिया नहीं है कोई इसमें क्योंकि डेली। हम गए नहीं यूपी लाइक। आप आगे फ्यूचर में मोदी जी के अलावा किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? That's a quite personal question, I would say. But see, apart from Modi ji, I think as a politician, I love Amit Shah. Intellectuality अगर हम देखें तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे योगी जी बहुत पसंद है। तो अगर तो उनको बनना चाहिए आगे जाके कि नहीं? योगी जी डेफिनेटली बन सकते हैं? बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? मेरा एक ऑप्शन तो यही था, दूसरा आई थिंक वुड बी शशि थरूर बिकॉज आई रियली लाइक हिज पर्सनैलिटी एंड हिज ऑरा दैट ही काइंड ऑफ फ्रेम्स इन द इंटरनेशनल एरेना. आई फील ही वुड बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर प्राइम मिनिस्टर. आई एम नॉट श्योर इफ इट विल बी बिकॉज ऑब्वियसली अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, बट आई थिंक एज अ ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव ही इज़ रियली गुड. योगी जी में ऐसी क्या खास बात लगती है कि आप उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर देख सकते हो? जब से वो सीएम बने हैं, जैसा हमने देखा है, और जब से वो बने हैं हमने यही देखा है कि क्राइम रेट यूपी में कितनी हद तक कम हो चुकी है एंड क्रिमिनल्स को कैसे इन अ बिट मोमेंट उन्हें सज़ा मिलती है. तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे इंस्पायर करती है उन्हें देखकर कि कैसे जो चीज़ हो रही है उसे एट ए टाइम उसे हैंडल कैसे किया जाए. एंड उनकी आई थिंक क्राइम स्ट्रैटेजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट. क्या पसंद है आपको योगी जी में? मुझे जैसे इन्होंने बोला कि आई रियली लाइक द वे ही काइंड ऑफ मेक श्योर दैट हिज स्टेट इज़ फ्री फ्रॉम क्रिमिनलाइजेशन, जो कि मतलब वो तो मुश्किल ही है. बट पहले मुझे भी ये था कि यूपी जाने में थोड़ा सा डर था, बट नाउ आई एस्पायर टू लाइक डू माई फ्यूचर स्टडीज़ देयर. सो आई थिंक वो एक है कि नाउ आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड टू एक्सप्लोर यूपी मोर. एंड अब इनफैक्ट मेरा जो आगे की लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग टू डू माई फर्दर स्टडीज़ is in Banaras, so I think that aspect is also there. आप आने वाले फ्यूचर में क्या योगी आदित्यनाथ को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखते हो या नहीं? मैं उनको बिल्कुल भी एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहूँगा. क्यों? देखिए, जो आज वर्ल्ड सिनेरियो है, हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो सिर्फ एक तरह की राजनीति ना करते हों. जैसे हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, इससे तो हम लोग बहुत परेशान हैं. हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो एजुकेटेड हो, जो आज के यूथ को समझ सकता हो, और वो सिर्फ एजुकेशन से पॉसिबल है. तो एक हाईली एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, वेल कल्चर्ड और जो बिल्कुल सेक्युलर हो. अगर जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता हो, हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए. हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए जो किसी एजेंडा के तहत काम करता हो. तो कौन चाहिए फिर आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर? आई थिंक इस कंट्री के यूथ बहुत समझदार हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं. मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, नेचुरली इस समय तो प्रेजेंट टाइम में मुझे राहुल गांधी, हालांकि मैं बिल्कुल कांग्रेस को पसंद नहीं करता था. 7 साल पहले तक राहुल गांधी को आई वॉज वन ऑफ द हेटर्स. आई यूज टू हेट हिम अ लॉट, बट इन लास्ट एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आपको अच्छे लगने लगे? जो उनकी जिस तरह से वो इवॉल्व हुए हैं लास्ट 5-6 सालों में, उनकी भारत जोड़ो यात्रा और जो ये चीज़ें हुई हैं, मैं कहाँ दिल्ली में रहता हूँ और जो वो कहाँ कहाँ जाते हैं, एज अ पर्सन मेरी उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई. तो मुझे कोई कंट्री के लिए इस समय ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो इस तरह की सोच रखता हो, जो यूथ के बारे में सोचता हो, जो प्रोग्रेसिव हो, और जो बिल्कुल भी रिजिड, ऑर्थोडॉक्स और जिलोट तो नहीं होना चाहिए. कहीं ना कहीं जो ये बीजेपी सरकार है ये नफरत फैलाती है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है, ऐसा लगता है? यस मैम, इसकी वजह से ही उनकी बाकी चीज़ों से एक बार को हम फिर भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं. हालांकि बाकी फ्रंट पे भी वो ऑलमोस्ट फेक ही है. सारा ये मैनेजमेंट गेम दिखता है मुझे, और ये किस तरह से लोग एक साइड होकर सोच रहे हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे चलती हैं, और इसी वजह से वो मेजॉरिटी और बहुत अच्छे वोट के साथ जीतते हैं. तो अगर राहुल गांधी आते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर तो क्या वो देश को सही से संभाल पाएंगे? क्या वो युवाओं को जो नौकरी की दिक्कत है, स्किल्स की प्रॉब्लम है, वो ठीक उस पर काम कर पाएंगे कि नहीं? मैम, मुझे नहीं लगता कि ये मैजिक की तरह काम करेगा. जैसे मोदी जी भी 11-12 साल से काम कर रहे हैं, कोई मैजिक तो किसी के पास भी नहीं है. हाँ, लेकिन एक बेहतर इंसान अगर वहाँ बैठा हुआ है तो वो हम जैसे इंडियन जो पढ़े लिखे हैं, मैं टीचर हूँ,
तो हमें ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हमारा जो लीडर है वो कम से कम एक सही बात करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास करता है। तो हमें एक ऐसा चाहिए। आपने जो सवाल पूछा कि क्या वो लीड कर पाएंगे, क्या वो जॉब क्रिएट कर पाएंगे, हाँ मुझे लगता है कि अगर एक ऐसा पर्सन इस समय कंट्री में आता है तो बिल्कुल वो अच्छी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि वो बियॉन्ड सोचेगा इन चीज़ों से। मोदी जी आपके अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं कि नहीं? चूक रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ मामलों में, लेकिन जो मोदी जी के अगल बगल में जितने लोग हैं वो शायद इसी तरह की चीज़ों में विश्वास करते हैं। उनको पता है कि उनके लिए कुछ और है नहीं, तो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करो और वोट जीतो। मोदी जी नहीं रोकते उनको, इसलिए उनसे प्रॉब्लम है कि वो चीफ हैं इसके, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। अगर वो एक बार लोगों को कह दें कि ये सब चीज़ें ना करो, इस तरह की स्टेटमेंट ना दो, तो शायद बातें रुक जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि साइलेंटली वो भी इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मोदी जी से डिसअपॉइंटमेंट ही है। सर फ्यूचर में आप किसको मोदी जी के अलावा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? कोई एक नाम है आपके ख्याल में? किसको देखना चाहेंगे भाई? मुश्किल सवाल है ये तो। नहीं इतना भी मुश्किल नहीं। मिलकर देखेगा, मैं क्या अकेले करूंगा। योगी जी को देखना चाहोगे कि नहीं? नहीं, उनको तो सीएम भी नहीं रहना चाहिए। क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है? लेकिन अभी उस पर बात करते हैं, पीएम के ऊपर। आपने जैसे बताया कि उनको सीएम भी नहीं रहना चाहिए, तो क्या वजह आप देखते हैं कि उनको सीएम भी नहीं रहना चाहिए? क्या यूपी सही से नहीं संभाली हुई है उन्होंने? हाँ, वो एक जो रूलर का काम है ना, सबके समस्याओं का समाधान निकालना, तो वो इसके बजाय जो है समस्याएं बढ़ाते हैं लोगों की। तो लगता है कि समस्याएं बढ़ाने वाले को रूल नहीं करना चाहिए, समस्याओं को कम करने वाले को रूल करना चाहिए। किस तरीके की समस्या? अब रोज़ वहाँ कोई ना कोई समस्या यूपी में खड़ी रहती है, तो समस्याओं की तो कमी नहीं है, बढ़ती जा रही है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं नफरत ज़्यादा फैलाते हैं योगी? नहीं, वो नफरत तो बहुत से लोग मिलकर फैला रहे हैं, लेकिन उनका काम तो अच्छे से रूल करना है ना। मतलब नफरत और मोहब्बत ये तो पब्लिक में बहुत से लोग उसके जिम्मेदार हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर अच्छी तरह से गवर्नमेंट को चलाना, लोगों के मसलों को हल करना, तो ये उनका काम है। वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा मसलों को बढ़ा रहे हैं, समस्याएं बढ़ा रहे हैं। तो किसको आप चाहते हो आगे प्रधानमंत्री के रूप में देखना? अब वो क्या है ना कि पॉलिटिक्स जो है वो हर वक्त बदलती रहती है, इसलिए आप कोई तो पार्टी होगी ना आपके ध्यान में? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, किसको आप चाहते हैं? अब पार्टी की तो बात नहीं है, लेकिन कोई अच्छा लीडर अगर सामने आता है जो साबित करता है कि वो देशभक्त है, तो उसको मिलना चाहिए वोट। राहुल गांधी लगता है कि हैं देशभक्त? मतलब अभी बातों से तो लगते हैं, काम करके नहीं दिखाया है, मतलब टेस्ट नहीं हुआ है, बातें ठीक हैं। केजरीवाल लगते हैं देशभक्त? उन्होंने काम अच्छा किया है दिल्ली में, है ना, तो वो टेस्ट किए हुए हैं, टेस्ट अच्छा है उनका। मोदी जी लगते हैं देशभक्त? उन्होंने अब तक कोई अच्छा काम करके नहीं दिखाया, मतलब इतने साल से हैं वो, कोई नाम ऐसा काम करके नहीं दिखाया जिस पर उनकी तारीफ की जाए। मतलब अपनी तारीफ वो खुद तो करते हैं, लेकिन उनकी तारीफ पब्लिक करे ऐसा कोई काम अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे यूपी में बहुत लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ सेफ है, गुंडागर्दी इतनी नहीं होती है, तो अब आपको ऐसा लगता है कि यूपी में ऐसा कुछ है भी या बस ऐसी बातें हैं? नहीं, ये सब तो बातें हैं, सब तो बातें ही हैं। मतलब ये बदलाव आपको नहीं लगते हैं? हाँ, यूपी में क्या है कि जब कोई एक ग्रुप यानी एक हिस्सा पब्लिक का वो अगर अपने आप को अनसेफ महसूस करे, परेशान महसूस करे, कौन सा हिस्सा? तो उसमें माइनॉरिटीज़ का मामला है, दलितों का मामला है, तो ओबीसीज भी, तो ये सब लोग अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है आपको बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही देखते रहें द पब्लिक रिपोर्टर।